संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
हम देखते हैं कि ईश्वर में आस्था रखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वरीय भक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। एक ऐसी ही अद्भुत कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले फगुलाल जी की, जो हिंदू धर्म में चली आ रही पारंपरिक भक्ति में लीन थे। व्रत उपवास देवी देवताओं का नित्य पाठ किए, लेकिन दुख और कठिनाइयों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तंत्र मंत्र का सहारा लिया, घर में प्रेत आत्माओं का साया मंडराने लगा, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक दिन फगुलाल की किस्मत ने करवट ली। उनको एक महान संत जी की शरण प्राप्त हुई। उनके सिद्ध मंत्रों के जाप से कठिनाई और बुरी ताकतें कमजोर हो गई। घर में सिद्धि और समृद्धि होने लगी। आखिर वह संत कौन है जिनकी शरण मात्र से उनको एक सच्ची राह मिली? आइए जानते हैं फगुलाल जी की यह अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मैं फगुलाल निषाद, डबरा ब्लॉक, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2 जुलाई सन 2018 को लिया है सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले मैं हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति एवं पूजा पाठ किया करता था, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी, दुर्गा जी और शिव जी को इष्ट देव मानकर उनकी बहुत भक्ति करता था। और शिव जी का जो है 16 सोमवार का व्रत भी करता था और तीर्थ व्रत भी खूब करता था। और इस तरह से मैं अनेक प्रकार के धार्मिक क्रिया करता था सर जी, पर इन सब से मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ सर जी। सर फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी इतनी सारी भक्ति साधना करने के बावजूद भी सर जी मेरे घर में सुख शांति नहीं था। मेरे घर में दुख कलेश बना रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और भूत प्रेत की बाधा से सर मैं बहुत परेशान रहता था। भूत प्रेत की बाधा से सर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। और ये जो भूत प्रेत की बाधा है सर, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। हालांकि लोग इस बात को नहीं मानते और साइंस और विज्ञान तो इस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि सर इस बीमारी का अन्य बीमारी की तरह कोई एक्सरे नहीं होता, कोई सोनोग्राफी नहीं होता, ना कोई रिपोर्ट दिखाया जा सकता है सर जी। इस बीमारी को सिर्फ वही बंदा जान सकता है, वही बंदा महसूस कर सकता है जिसके साथ यह घटना घटित हुआ हो। और ऐसे ही कोई घटना मेरे साथ भी घटित हुआ है सर जी, कि भूत प्रेत की बाधा से मैं तो बहुत परेशान रहता ही था। साथ ही साथ मैं वशीकरण का शिकार हो गया था सर जी। 2 तंत्र विद्या वाली महिलाओं ने, बहुत सिद्धियुक्त महिलाओं ने मुझे अपने वश में करके रखा था सर जी। और वो लोग ना सर जी जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे मुझे उत्तेजित कर देते थे, फिर शांत कर देते थे सर जी। और रात में सर जी यहाँ तक कि वो लोग ना मेरे बिस्तर पे आते थे सर जी, और दोनों मेरे साथ संबंध बनाते थे सर जी। दोनों बारी बारी से संबंध बनाते थे सर जी। तो रात भर उन लोगों का अपना जो टाइम था उतना तक टाइम तक संबंध बनाते थे, फिर पता नहीं सर वो कहाँ गायब हो जाते थे। और सर दूसरी तरफ मेरे घरवाली को भी परेशान करके रखते थे सर जी। तो कभी उनके सिर में दर्द हो जाना, कभी पेट में, कभी चक्कर आना, तो मैं उसको कभी तांत्रिक के पास लेके जाता था और डॉक्टर को दिखाता था, जिसमें मेरा काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता था और मैं बहुत परेशान रहता था। और जब इतने से भी उनका जी नहीं भरा ना सर जी, तो लास्ट में उन्होंने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव को ना, मेरे को ना अपने बलि रूप में चढ़ा दिए थे। और उन्होंने एक दिन का समय फिक्स किया हुआ था कि इसको अमुक दिन ख़त्म करना ही करके। तो उस दिन सर सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं घर पे कोई काम पे लगा हुआ था, तो कोई चीज़ आया और मेरे अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सर उसने मेरा गला दबाने लगा, और जैसे खून का दौरा तेज़ हो जाता था, कभी कम हो जाता था, नसें ब्लॉक होने लगा और दिमाग सर बिल्कुल खाली हो गया। जैसे एक मेंटल करता है ना, वैसी स्थिति हो गया। जैसे सामने किसी बंदे को नहीं पहचानता था, है ना, सामने कोई भी चीज़ पड़ा रहता था, जैसे गोबर कचरा जो भी हो मैं खा लेता था और आँख से आंसू बहता रहता था। उस दिन सर जी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया होगी मेरे ऊपर कि मेरा बड़ा भाई जो है ना, 2013 से ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके उनकी भक्ति करता था। उसने मेरी स्थिति को देखा, वो देखते ही समझ गया कि भाई को ज़बरदस्त भूत प्रेत की बाधा लगा हुआ है। फिर भी घर वालों ने सर जी एक दिन तांत्रिकों के पास लेके गया, झाड़ फूँक करवाया, तो रात भर ठीक रहा। सुबह तक वही हालत, सुबह फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। अब भाई देखा भाई तो बचने वाला नहीं है। फिर उसने मेरे को बोला, अरे भाई अभी भी वक्त है, तू आजा, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना चाहेगा? मैं बोला भाई अब ले चल, कोई ठिकाना नहीं है ना, अब वही बचा सकते हैं मेरे को। फिर जहाँ पे भाई अपना जोत जलाते थे, परमात्मा का जो है ना मूर्ति वगैरह रखे हैं, वहाँ उन्होंने जोत जलाया, मेरे को भी लेके गया और दंडवत प्रणाम किया और मेरे को भी करवाया और बोला कि परमात्मा से ना तू अरदास लगा और बोल कि परमात्मा मेरी रक्षा करना, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। फिर मैं बोला परमात्मा से, गुरुजी मेरी रक्षा करना, मैं आ रहा हूँ आपकी शरण में। फिर उस दिन मैं, मेरा भाई आश्रम में आते ही भगत भाई ने देखा और जो लोग थे वो लोगों ने देखा कि ऐसी स्थिति में हम भाई इसको कैसे नाम दें, ये तो बिल्कुल मेंटल की तरह है। फिर भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और ले दे करके उस दिन मुझे और मेरी घरवाली को, और 2 जुलाई 2018 को यहीं चांपा नामदान सेंटर से मुझे परमात्मा से नाम उपदेश मिला सर जी।
तब जाकर जो है ना मेरी जीवन की गाड़ी जो है पटरी पे आई और उनकी भक्ति करने से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी स्थिति बहुत ही खराब थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले, आपकी स्थिति में सुधार हुआ? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं सर जी। अगर सारा लाभ गिनाना चाहूँगा सर जी तो दिन से रात और रात से दिन हो जाएगा सर जी। फिर मैं कुछ कुछ लाभ बताना चाहूँगा सर जी। मैं गुप्त रोगी था सर, जैसे सेमन एनालिसिस हो गया, स्पर्म काउंट हो गया, शुक्राणु की कमी, वीर्य का पतलापन, ये सब बीमारी था, जिस वजह से हम समझते थे कि हमारा कोई बालक संतान नहीं हो रहा है। और बालक संतान नहीं हो रहा है करके हम लोग बहुत परेशान रहते थे, जो जहाँ बोलते थे वहीं चले जाते थे। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनके द्वारा लिखे पुस्तक जो जीने की राह है उसको पढ़ा हम, तो परमात्मा की जब नाम लिए सर जी, उनकी भक्ति की हैं, तो वो सब बीमारी अभी ठीक है। अभी परमात्मा की डॉक्टरी भर्ती करते हैं, अभी शरीर में कोई दुख कोई परेशानी नहीं है सर जी। पत्नी को सर वो लुकेरिया आता था, सफ़ेद पानी आता था, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी सर। पीरियड के टाइम में काफ़ी परेशान रहती थी, दर्द होता था, जिसका काफ़ी इलाज करवाया सर जी। तो परमात्मा से नाम उपदेश लिए हैं, अभी डट कर भक्ति करते हैं, तो वो बीमारी भी अभी ठीक हो गया है सर जी। अभी हमारे शरीर में, अब घर परिवार में भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा थी सर, हम हमेशा परेशान रहते थे। तो परमात्मा की भक्ति करने से वो जो भूत प्रेत की बाधा थी ना, वह धीरे धीरे सब अभी ख़त्म हो गया है। अभी सब नॉर्मल है और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी सब ठीक है सर जी। सर जी, मेरे घरवाली को रसोली का शिकायत था, है ना, उसके बच्चेदानी में दोनों साइड 5-5, 6 mm का गांठे पड़ गया था, है ना, जिसका काफ़ी इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा था। और डॉक्टर बता रहे थे कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। सर जी, फिर जो है मेरे पास इतने ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं था। फिर मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से ना अरदास लगाया, तो परमात्मा बोले कि बेटा नियम मर्यादा में रहकर भक्ति करो, परमात्मा ठीक कर देंगे। महीने 1.5 महीने के बाद फिर हॉस्पिटल गया सर जी, वहाँ पर सोनोग्राफी करवाया, तो आप यकीन नहीं करोगे सर जी, जो 5-5, 6 mm का जो गांठे पड़ गया था ना, वो क्लियर हो गया, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ा सर जी। जिसमें 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था, परमात्मा ने मेरे को 3 से 4 हज़ार रुपये में ही निपटारा करवा दिया। ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं सर, ये जो 5-5, 6 mm का गांठ बता रहा है, ये मतलब पहले का रिपोर्ट है मेरा, जिसमें गांठ बता रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर, 5-5, 6 mm का जो गांठ पड़ गया था बच्चेदानी के दोनों साइड में। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाया, और ये सर अरदास लगाने के बाद जो सोनोग्राफी करवाया था हॉस्पिटल जाके, उसका रिपोर्ट है। और जो 5-5, 6 mm का गांठ पड़ गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल दाग धब्बे टाइप का दिखाई दे रहा था। और डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन लगेगा, मेरे को कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल सा दवाई दिया 1 महीने का, 1 महीने की दवाई में ही वो आराम हो गया। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं सर। और क्या लाभ मिले सर आपको? सर जी, मैं घर में इतना दुख, इतना परेशानी था, हमेशा टेंशन में रहता था, है ना, मानसिक तनाव बना रहता था, तो टेंशन में आ गया सर जी। मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मांस भी खाता था और गुटखा तंबाकू खूब खाता था सर जी। एक दिन में मैं 4-4, 5-5 गुटखे तंबाकू के खा जाता था, है ना सर जी। हर एक को बुराई करता था जो इंसान को नहीं करना चाहिए। तो सर जी पहले इतना बुराई करता था, इतना नशा करता था, है ना, कभी कभी जुआ भी खेल देता था, है ना, जितना कमाता था सर जी, तो कभी जुए में बढ़ जाता था, वो सारा मतलब हार जाता था और बहुत परेशानी होता था। घर में खाने के लिए लाले पड़ जाते थे, अगर उसी टाइम सर जी कोई मेहमान आ जाता था, 2-4 मेहमान आ जाता था, तो उनके खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाता था। अभी सर जी परमात्मा की भक्ति करने से सब बुराई छूट गया है और जितना कमाते हैं सब बचत में जा रहा है सर जी। अभी सब नॉर्मल चल रहा है सर जी, परमात्मा की दया से सब ठीक है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपका नशा भी छूटा? 100% छूट गया सर जी। जब से परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया सर जी, तो उनकी भक्ति करने से सर जी मैं जितना भी नशा करता था वो सब धीरे धीरे आज छूट गया सर जी। आज कोई बोलता है कि नशा ला के दे या तो कोई गुटखे ला के दे, तो मैं उसको बिल्कुल मना कर देता हूँ सर जी। बहुत नशा करता था, सब नशा आज छूट गया सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, परमात्मा ने अभी खूब दया कर रखी है। जैसे हर एक ज़िले के हर एक स्टेट में परमात्मा ने नाम दान सेंटर खोल रखा है। और अभी जो है ना अधिक आपको जानकारी चाहिए सर जी, तो अभी टीवी चैनल के जो सत्संग चैनल आता है, उस सत्संगों पे नीचे जो है ना पीली पट्टी चलती रहती है, उस पीली पट्टी पे आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर को नोट करो, नोट करके फिर आप फ़ोन करो आश्रम से, फिर आपको अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता चल जाएगा। फिर वहाँ जाके आप अपना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके उनकी भक्ति करके अपना जीवन कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। साहब सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव,
प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहां से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398। पूर्णमासी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया, काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को घर ले आए, और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है, और काल भगवान जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नासवान है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था। जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया, पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी,
दोहा, चौपाई आदि आते हैं। इसलिए ये जो कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते, लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयंभू गुरु बनकर दान कर भी रहा है, तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है, भक्ति साधना कठिन नहीं है। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को हम अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले, यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के उनके मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुल्हाई के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने इस सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा, परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है।
पूर्ण परमात्मा अन्य है और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है, और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है। और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है। और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता, ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद, ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया, योग कर दिया। और वो मत यानी इसके विचार यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं है।
ये चार वेद पहले सर्वप्रथम परमात्मा ने ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, पूर्ण ज्ञान इस सरपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में ये पूर्ण ज्ञान फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था सतलोक से, और उसका समय निर्धारित कर दिया था। इतने समय उपरांत अपने आप इसके शरीर से ये बाहर आ गया था संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान। इस काल भगवान ने जब इन पूरे कंप्लीट वेद को देखा तो इसने क्या किया, इसमें से वो भाग निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि और सतलोक के अंदर वर्णित विशेष जानकारी जो थी, वहां क्या स्थिति है, कैसे रहते थे, तुम यहां कैसे आए, ये भी ज्ञान था। इसने उस पोर्शन को, उस भाग को निकाल कर नष्ट कर दिया। शेष जो ज्ञान है अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। आगे चलकर ये चार वेद कहलाए, उसके चार इन्होंने चार भाग कर लिए। जिस वेद के भाग को इस ज्योत निरंजन ने अर्थात इस काल भगवान ने ब्रह्म ने नष्ट किया था, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपने मुख कमल से बोलकर उस अमृत ज्ञान को सुनाते हैं। वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये वर्णन किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसे वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करें तो उस परमात्मा की साधना तो तू ऐसे कर सकता है। अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता ने वो अपनी भक्ति सतर और उसकी विधि भी क्लियर कर रखी है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना के लिए उसने तत्वदर्शी संत की खोज का ऑप्शन छोड़ दिया, प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं रखता, नहीं तो 4 लाइन और लिख देता, 18 अध्याय बोले 2 अध्याय और बना देता अगर इसको ज्ञान होता। तो पुण्यात्माओं, उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया कि ऐसे इंटरनेट बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर के ग्रहों तक भी पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, और कंप्यूटर बना लिए। अब जो हमने इस मनुष्य शरीर से बनाना था उसने भूल गए। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है
जहां पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते, उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर तक घूम आते थे, सैर सपट्टे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि अर्जुन, ये पांचों पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहां वो शिक्षा, नाच गाने की शिक्षा, ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है, और ये इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से ज्ञान सुनता है। यहां बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया हमें, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपने माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ साधक, योगी माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, यानी ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं। ये 26 नंबर है। अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27वें, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान
पर से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में चौथे अध्याय का 28। कई पुरुष, कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहते हैं इस कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं। इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, इसी में अपना अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मान रहे हैं। और कुछ यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावा नहीं, वो तरीका अपनावा नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण है बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये स्वाध्याय का जो कारण है, तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले। आगे देखना अब 29 और 30 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं।
तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्मणी सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले यानी ये जो यज्ञ नहीं करते यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है? जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं, तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भावार्थ ये है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी। अब जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए हैं। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहां बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना ही, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मण मुख्य का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहां विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे एवं
बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਭਗਤੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਥੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇन्हीं 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਦ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਲਏ। 32 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨਾਲ ਭਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਪੋਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਯੈਲੋ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ? ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜੀ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਬੋਟਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਨਰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਬੋਟਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਇੱਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਂਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਲੱਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੈਗਾ 33 ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਂਗਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਪਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਰਮ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਉਨੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਵਧਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਘਰ ਖੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਓ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਔਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।